السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو بڑی راحت دیتے ہوئے پالامور رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم پر کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ RSMLC کے کویتا نے الزام لگایا کہ بی جے پی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے وسائل کا مناسب استعمال نہیں ہو سکا۔ بی جے پی کی ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ تلنگانہ میں زعفرانی پارٹی تنہا ہی حکمراں BRS پارٹی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے پولیس کی بھرتی مہم کے فزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ کے لیے حاملہ اور حال ہی میں ماں بننے والی امیدواروں سے حلف نامہ داخل کرنے کی تاریخ میں اس مہینے کی 28 تاریخ تک توسیع کی ہے۔ حیدرآباد پولیس نے بین ریاستی منشیات کے ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 23.5 کلو گرام گانجا ضبط کیا۔ مادھاپور پولیس نے جمعرات کے روز ایک بین ریاستی منشیات فروشی کے ریکٹ کا پردہ فاش کیا اور ایک خاتون سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا۔ عہدیداروں نے 23.5 کلو گرام گانجا، ایک کار، 3 موبائل فون اور نقد رقم ضبط کی، جس کی مالیت 6 لاکھ روپے تھی۔ گرفتار افراد کی شناخت سوربھ سنگھ 29 سالہ، اس کی بیوی رادھا 20 سالہ اور جے پرکاش سنگھ 26 سالہ کے طور پر کی گئی ہے۔ تمام اتر پردیش کے متھرا ضلع کے رہنے والے ہیں۔ مفرور افراد میں تمبو ناد اور رمیش ہیں، جو اڑیسہ آندھرا پردیش کے منشیات فروش ہیں۔ پولیس کے مطابق سوربھ اور رادھا اور جے پرکاش آسانی سے اور جلد پیسے کمانے کے ارادے سے منشیات کا کاروبار کرنے لگے۔ انہوں نے اڑیسہ کے ایک منشیات فروش تمبو ناد اور آندھرا پردیش کے اراکو ایجنسی کے ایک اور منشیات فروش رمیش سے رابطہ کیا اور اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ وہ ان سے 2,500 روپے فی کلو کے حساب سے چرس خرید رہے ہیں اور متھرا میں اس سے 15,000 سے 20,000 روپے کے درمیان گاہکوں کو فروخت کرتے ہیں۔ ایک سینئر پولیس اہلکار نے کہا کہ چیک پوسٹوں پر پکڑے جانے سے بچنے کے لیے مشتبہ افراد ادرک، باجرے کے پودوں کے نیچے اور کار کے خفیہ کیبن میں ممنوعہ اشیاء کو چھپاتے ہیں۔ ایک خفیہ اطلاع کے بعد مادھاپور پولیس نے خان میٹ میں مشتبہ افراد کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ ایک کار میں اڑیسہ کے دارالپوت سے حیدرآباد کے راستے اتر پردیش کے متھرا کو اسمگل کر رہے تھے۔ عہدیداروں نے کہا کہ خصوصی ٹیم میں منشیات فروشوں اور صارفین پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سائبر آباد میں سائیکوٹراپک مادوں اور ممنوعہ نشاور ادویات کے خطرے کو روکنے کے لیے مختلف ذرائع اور مخبر تیار کیے ہیں۔ 16th of February, on specific input which is with Madhapur police, they have conducted a vehicle checking at several places, and they have in the process checked this Delhi registered vehicle, Honda City car, in which they have found 23.5 kgs of dry ganja packed along with some finger millets, and the material has been packed in the back seat of the car so that they can avoid the checkings of the police, and this seizure of the car along with the material has taken place at RTO Kondapur Office Road, and the 3 persons, accused persons Saurabh, Jaiprakash and Radha, who are travelling in this vehicle, having taken this supply of dry ganja from drug dealers of Orissa and Araku. From them they have purchased this dry ganja at 2,500 rupees per kg, and they are proceeding towards UP Mathura to sell the same at a cost of at a price of 15,000 to 20,000 rupees per kg. So the dry ganja of 23 kgs and finger millets weighing 17 kgs, a Honda City car with Delhi registration, and mobile phones, all these have been seized, all worth around 6 lakh rupees. Previously in Madhapur police station itself, nearly 274 kgs of ganja has been seized, and several cases have been booked. So the Madhapur police have been very actively keeping information and preventing the supply or sale or the transit of ganja through the limits. Appreciate Inspector Tirupati, SI Avinash and their team, who have done this good work under the supervision of ACP Raghunandan Garu and Additional DCP Narasimha Reddy Garu, and will also put up rewards for them. Similarly, a request to public, any information they have regarding peddlers or suppliers or consumers or places where such material or substances are being supplied, request them to inform the same to dial 100 or the anti-drug abuse helpline of Cyberabad on 94920 99100, or the Cyberabad WhatsApp number
9490617444 or to your local police and help us in curbing this menace. Thank you. हरीश राव ने मेडिकल कॉलेजेस के मामले पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। करीमनगर और खम्भम जिला के लिए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी न देने पर बीजेपी ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस साल रियासती फ़ंड से दोनों अजला में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम करेगी। ये बताते हुए कि करीमनगर और खम्भम में मौजूदा कॉलेजेस प्राइवेट इदारे थे। वज़ीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इन दो अजला में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की दरख्वास्त कर रही है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया कि दोनों अजला के लिए सरकारी कॉलेजों की मंजूरी क्यों नहीं दी गई। क्या तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं है? क्या करीमनगर और खम्भम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हरीश राव ने यह सवाल पूछा। करीमनगर और खम्भम के लोग मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने में नाकाम रहने पर बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएंगे। उन्होंने निशानदेही की कि मरकज़ी हुकूमत के इम्तियाजी सलूक की वजह से तेलंगाना अब नर्सिंग कॉलेजों को भी खो रहा है। మీరే కారణం, కానీ ఆ తెచ్చిన అప్పులను కూడా ప్రతి పైసాను కూడా మేము క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఎక్కువగా పెట్టి తెలంగాణ సంపద పెంచే ప్రయత్నం చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇది మీకు మాకు ఉన్నటువంటి తేడా. మేము ఏం మాట్లాడినా ఒక డేటాతో మాట్లాడతాం. నిర్మలమ్మ గారు నిన్న మాట్లాడుతూ ఉపాధి హామీకి పనులను బట్టి నిధులు ఉంటాయని చెప్పారు. డిమాండ్ను బట్టి మేము నిధులు ఇస్తామన్నారు. మరి డిమాండ్ను బట్టి నిధులు ఇచ్చేది ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరినన్ని పని దినాలను ఎందుకు కల్పిస్తలేరు? మేము కోరినన్ని పని దినాలకు ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతిస్తలేదు? మరి డిమాండ్ సంవత్సరం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పోయిన సంవత్సరం కంటే బడ్జెట్లో 30,000 కోట్ల రూపాయలు ఉపాధి హామీకి ఎందుకు కోత పెట్టారు అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. సంవత్సరం కూలీల సంఖ్య పెరుగుతుంది, పని దినాలు పెరుగుతాయి, దానికి అనుగుణంగా నిధుల కేటాయింపు పెరగాలి. కానీ మీరు బడ్జెట్లో 30,000 కోట్ల కోత పెట్టినారు. ఇది దేనికి సంకేతం? దీనికి సమాధానం అడిగితే గౌరవనీయులైన కేంద్ర మంత్రి గారు దాటవేసే ప్రయత్నం చేసింది తప్ప సూటిగా సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం చేయలేదు. బడ్జెట్లో విభజన హామీల గురించి ఎందుకు ఒక మాట చెప్పలేదు? మా బయ్యాన ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ గురించి చెప్పకపోతుంది, రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ గురించి చెప్పకపోతుంది, మా గిరిజన యూనివర్సిటీకి నిధులు కేటాయించకపోతుంది. ఈ విషయం మీద హైదరాబాద్కి వచ్చింది కదా ఏమన్నా చెప్తారేమో అంటే ఒక్క మాట కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితి లేదు. అంటే ఇలా మీరు చేస్తున్నదంతా కూడా డొల్ల ప్రచారం. మీ మాటల్లో నిజాయితీ లేదు, మీ మాటల్లో నిజం లేదు, వాస్తవాలను దాటవేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ మేమేమో అప్పులను తగ్గిస్తే మీరేమో కేంద్రం అప్పులు పెంచుకుంటూ పోతున్నారు. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మాకు ఉన్నటువంటి తేడా. మీరేమో అప్పులు పెంచే. सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत। एमसीडी की पहली मीटिंग में होगा दिल्ली के मेयर का इलेक्शन, नामजद अरकान नहीं दे सकेंगे वोट। दिल्ली के मेयर के इंतखाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जुमा को समाअत शुरू हुई। केस की समाअत करते हुए मुल्क के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पहली नज़र में हम मानते हैं कि एमसीडी के आइन में नामजद अरकान को देने का हक नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एमसीडी की तरफ से पेश होने वाले ASG संजय जैन से पूछा कि क्या नामजद वोट दे सकते हैं। एमसीडी के वकील ने कहा कि नामजद कौंसलों पर पहली मीटिंग में वोट डालने पर कोई पाबंदी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हिदायत देते हैं कि पहली मीटिंग में मेयर का इंतखाब किया जाए, नामजद अरकान इस सिलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पहले मेयर के अहदे का इंतखाब हो, डिप्टी मेयर का इंतखाब इनकी क़यादत में होना चाहिए। मेयर के अहदे का इंतखाब एमसीडी की अगली पहली मीटिंग में होगा। नामजद काउंसलर्स को इसमें वोट देने का हक हासिल नहीं होगा। नेज़ अगले इजलास से मुतालिक नोटिस 24 घंटे में जारी करना होगा। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी मेंबरान का इंतखाब कब कराया जाएगा, इसका फैसला इसी इजलास में किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि एल्डरमैन वोट नहीं दे सकते, यही जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। आम आदमी पार्टी की लीडर डॉक्टर शीली ओबराय ने नामजद अरकान को मेयर के इंतखाब में वोट देने की इजाज़त देने के LG के फैसले को चैलेंज किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को राहत मिली है। इनके दोनों बुनियादी मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जमहूरियत की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली को अब 2.5 माह बाद मेयर मिलेगा।
ये साबित हो गया है कि किस तरह एलजी और बीजेपी मिलकर दिल्ली में गैर कानूनी और गैर आईनी अहकाम जारी कर रहे हैं। निजामाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवानों की मौत, एक शदीद जख्मी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के पुतंगल मंडल में मुस्तखर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े में एक और नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मकामी एसआई मचिंदर की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी ज़िले के मदनूर मंडल के मुल्लाराम गांव के 3 नौजवान जब्बार 32 साल, दिनेश 24 साल और साई गोंडा 28 साल मोटरसाइकिल पर बस को ओवरटेक करते पोतंगल से कोटागिरी की तरफ आ रही ट्रैक्टर से टकरा कर गिर पड़े। इस दौरान बोधन डिपो की बस ने इन तीनों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में बाइक पर सफ़र कर रहे 3 में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और नौजवान साई गुंडा शदीद ज़ख्मी हो गया। इसे तशवीशनाक हालत में मकामी लोगों ने 108 एम्बुलेंस के ज़रिए फौरी तौर पर बोधन सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म काबीनी रफ़ाक़ को एक तरह का झूठ बोलने की तरबियत दें, KTR का बयान। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपनी काबीनी रफ़ाक़ को एक ही तरह का झूठ बोलने की तरबियत देने की अपील की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर की गई तनक़ीद पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से असम्बली में मरकज़ी हुकूमत से किए गए सवालात का जवाब देने से खासिर निर्मला सीतारमण ने दूरदर्शन पर मुनाक़िदा प्रोग्राम में मनमानी अंदाज में गुफ्तगू की। KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना को मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के मामले में मरकज़ी वज़रा रोज़ नया झूठ बोल रहे हैं। एक ही मौजू पर 3 वज़रा की जानिब से अलग अलग झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी कम अज़ कम अपने वज़रा को एक ही झूठ बोलने की ट्रेनिंग फ्राहम करें। कारगुजार सदर BRS ने कहा कि मरकज़ी वज़रा की जानिब से झूठ का सहारा लिया जाना अफसोसनाक है। इस पर सितम ज़रीफ़ी है कि ये एक ही मौजू पर 3 वज़रा अलग अलग झूठे बयानात दे रहे हैं। जी किशन रेड्डी कहते हैं कि मरकज़ ने तेलंगाना के लिए 9 मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए हैं। दूसरे वज़ीर मनसुख मांडविया का कहना है कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए हुकूमत तेलंगाना ने मरकज़ से दरख्वास्त तक नहीं की। निर्मला सीतारमण का कहना है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सिर्फ मेडिकल कॉलेज की 2 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी गई। इस तरह हर वज़ीर की जानिब से हक़ाइक़ मालूम किए बगैर झूठ बोलते जा रहे हैं। KT रामाराव ने कहा कि इन हालात में अब ज़रूरी हो चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़रा को एक ही तरह का झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे। उन्होंने किशन रेड्डी के झूठ पर तंज़ करते हुए कहा कि झूठे वज़रा में किशन रेड्डी सबसे बड़े दानिश्वर है। इसके अलावा किशन रेड्डी की जानिब से साबिक़ में किए गए ऐलान कि हैदराबाद में ग्लोबल मेडिकल सेंटर कायम किया जाएगा को भी KTR ने सूफी झूठ करार दिया। इलेक्शन कमीशन से उद्धव ग्रुप को झटका, शिंदे ग्रुप को मिला शिवसेना का नाम, तीर कमान का निशान। उद्धव ठाकरे के ग्रुप को एक बड़ा झटका देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमा को हुक्म दिया कि शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान, कमान और तीर एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास ही रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुशाहिदा किया है कि शिवसेना का मौजूदा आइन गैर जमहूरी है। कमीशन ने कहा कि बगैर किसी इंतखाब के अहदेदारों के तौर पर एक हल्के के लोगों को गैर जमहूरी तौर पर तकर्रुर करने की वजह से ये बिगड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस तरह का पार्टी ढांचा एतमाद हासिल नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शिवसेना के तर्जुमान आनंद दुबे ने कहा कि फैसले से साफ है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आपने इतनी जल्दी में कैसे कह दिया कि निशान और नाम इनका है। इलेक्शन कमीशन अपनी साख खो चुका है। काला पत्थर MIM कारपोरेटर के खिलाफ केस दर्ज। काला पत्थर पुलिस ने जुमा को रनमिसपुरा के मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद खादर और पार्टी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि बीजेपी ने मोची कॉलोनी काला पत्थर में कॉर्नर मीटिंग मुनाकिद की थी, जहां इल्ज़ाम लगाया गया है कि कारपोरेटर और मजलिसी वर्कर्स ने एतराज़ करते हुए मुबैना तौर पर गड़बड़ की थी। बीजेपी कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि मजलिसी कारकुनों ने मीटिंग करने से रोका और इन पर हमला किया, जिससे इलाके में हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस के आला हुकाम इजाफी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में कर लिया। इसी दौरान बीजेपी कारकुन काला पत्थर पुलिस स्टेशन पहुंचे और सड़क पर बैठ गए और नाराबाजी करते हुए MIM के मकामी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इनकी शिकायत की बुनियाद पर IPC और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, केसीआर पालना। నా పార్టీ
సమస్య ఇది. మేము ఈడ బతుకుతామన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్నో మా జిల్లా अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।